3, 2, 1. The turf was changed in the world of hockey so that India's dominance could die. And the record kind of shows that because India was dominant. And until the AstroTurf was installed in 1976 for the first time, India used to win every Olympics. And that's true. ये बात तो सही है. लेकिन सच तो ये भी है कि ये बात बिल्कुल सच नहीं है. जब आप स्पोर्ट्स के बारे में सोचते हैं that are quite taxing on the environment, maybe you think about motorsports, say Formula 1, MotoGP, NASCAR, those kind of things. या शायद golf, क्योंकि lots of land, बहुत पानी यूज होता है. Again, for a different reason, maybe taxing on the environment, even though it is खुला मैदान. मैं कार्बन फुटप्रिंट और ट्रैवल की बात नहीं कर रहा हूँ, just the sport in general when it's played out in front of you on the television. As I said, when you're thinking about these sports, क्या कभी भी आपके जहन में हॉकी आएगा? क्योंकि सच तो ये है, हॉकी भी कोई दूध की धुली नहीं है. Recently, Paris 2024 से पहले बड़े चौड़ से FIH यानी कि जो हॉकी फेडरेशन है, इंटरनेशनल फेडरेशन है, बड़ी चौड़ से उन्होंने एक स्टेटमेंट की घोषणा की थी, saying कि इस बार द Paris Olympics in terms of hockey will be absolutely carbon neutral. लोग जो सुन रहे थे, जिन्होंने पढ़ा होगा पहले और इग्नोर कर लिया होगा, वो तो ठीक है. पर थोड़े मेरे जैसे लोग होंगे जो बोलेंगे इस स्टेटमेंट को पढ़ के कि हाँ, ये क्या बोलने की जरूरत है. So I did a little digging and it turns out that hockey consumes so much water that it could literally feed entire villages. जी हाँ, हॉकी एक मैच में per match uses 6,000 liters. यानी कि if a hockey match right now is 60 minutes, therefore one international match of hockey, only international matches, let's not go into domestic matches because that's different laws, but anywhere where the turf is used and on a quality basis, 6,000 liters for 60 minutes. AI के ज़माने में मैंने बोला चलिए पूछ लेते हैं ChatGPT से कि how much water does an individual consume on an everyday basis, यानी कि एक दिन में एक इंसान कितना पानी इस्तेमाल करता होगा. तो उन्होंने बोला एवरेज 100 to 200 लीटर्स पर डे एक इंसान इस्तेमाल करता है दुनिया में. तो पूछा इंडिया में क्या है, तो कहते हुए अर्बन एरियाज यानी कि बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, इधर an individual uses on an average 135 liters per day. 135 liters आप पी नहीं रहे हैं, आप नहा भी रहे हैं उसमें, आप सफाई भी कर रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, तो आपका एवरेज कंजम्पशन पर इंडिविजुअल इन एन सिटी इज 135 लीटर्स पर डे. अगर आप गांव के बारे में बात करें इन इंडिया, देन इट्स 40 to 70 लीटर्स पर डे पर इंडिविजुअल, यानी कि 40 से 70 लीटर महज इस्तेमाल करता है एक इंसान ऑन एन एवरेज एक गांव में. तो इसका मतलब ये है कि जो एक घंटा हॉकी का आप खेलते हैं जहां 6000 लीटर इस्तेमाल होते हैं, अगर आप शहर में हैं तो वो एक इंसान को 50 दिनों के लिए पानी दे सकता है. अगर आप गांव में हैं तो एक इंसान को 80 से 120 दिन यानी कि लगभग 2.5 महीने से लेकर पूरे तरीके से 4 महीने तक पानी दे सकता है. और ये बहुत शॉकिंग बात है. पर ये ऐसा हुआ ही क्यों? Why is so much water consumed during a hockey match? Why is there sprinkler systems and why does the pitch have to be so wet? For that we have to go all the way to the past. और जब ये करते हैं पास में जाएंगे, और जब ये पास में जाएंगे थोड़े नैरेटिव्स भी है ना, उनको भी थोड़ा तोड़ देते हैं. क्योंकि बचपन में या अभी भी मेरे पिताजी या उनके जनरेशन के लोग या मेरे जनरेशन के भी कई ऐसे लोग हैं जो खुलेआम ये बोलते हैं दैट द टर्फ वाज चेंज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ हॉकी so that India's dominance could die. And the record kind of shows that because India was dominant for many years. And until the AstroTurf was installed in 1976 for the first time, India used to win every Olympics, and that's true. ये बात तो सही है, लेकिन सच तो ये भी है कि ये बात बिल्कुल सच नहीं है. Because of the fact that yes, the turf was introduced in 1976, but it wasn't out of getting more power-driven games or denying India an opportunity to play well. This is exemplified by the fact that India won the gold in 1980 as well on an AstroTurf. ये मत भूलिएगा. तो 1980 में भी इंडिया गोल्ड जीत पाई है AstroTurf पर ही. It's just that administrative errors and issues such as not implementing turfs at the right time, not implementing the right grassroots policies are the reasons why India had such a drought in medals
अप अंटिल 2020 एंड 2024। पर ये जो बात है ना, इस पर गौर फरमाने की जरूरत आज नहीं, वो किसी और दिन इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वापस जाते हैं टर्फ पर ही। तो 1976 में पहली बार टर्फ को इंस्टॉल किया गया था मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में, जहां पर एक कंपनी थी एस्ट्रोटर्फ, जिन्होंने अपना हाथ ऊपर किया था और बोला था कि मॉन्ट्रियल बहुत ही ठंडी जगह है, इट्स अ वेरी कोल्ड सिटी, एंड दैट वाज द वरी फॉर द FIH एज वेल, बिकॉज़ देयर वाज नो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्फेसेस टू प्ले हॉकी ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि टेम्परेचर्स पर बहुत कुछ निर्भर होता था। अगर आप ग्रास टर्फ पर खेल रहे हैं, घास के मैदान पर खेल रहे हैं, तो कई इश्यूज थे। पहली बात तो ग्रास को मेंटेन करना, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ओलंपिक्स फॉर एग्जांपल, जहां मल्टीपल वेन्यूज होते हैं और मल्टीपल मैचेस खेले जाते हैं, तो उधर आप कैसे ग्रास को मेंटेन कर पाएंगे, और वो डिटीरियरेट भी तो बहुत जल्दी होता ही है। प्लस इन अ कोल्ड वेदर कंट्री लाइक कनाडा, जहां पर मॉन्ट्रियल में चल रहा है, वहां पर तो ग्रास मेंटेन करना वैसे ही काफी मुश्किल पड़ता है। The second problem that the FIH and international hockey was facing in general was the uneven grounds. Because it's a grass-covered pitch and hockey is reliant on the floor. It's not like football, जहाँ पर the ball bounces and it's a bigger ball. So sometimes that unevenness can get countered. Here, because the ball is also so small, if the ground is uneven, थोड़े गड्ढे हो गए, थोड़ा उबड़-खाबड़ हो गया, तो फिर गेम का फ्लो खराब हो जाता था। तो टर्फ जो था, एक लेवल सर्फेस हो सकता था। ये दूसरा प्रपोजल था। तीसरी बात ये थी कि यदि ड्राउट हो जाए, यानी कि बारिश ही ना हो, या बहुत घमासान बारिश हो जाए, देन हॉकी खेला ही नहीं जा पाता था, बिकॉज इट्स नॉट लाइक फुटबॉल जहां पर आप खेल सकते हैं। हॉकी में कीचड़ में बॉल मूव ही नहीं करेगी बिकॉज ऑफ द हिटिंग एंड इट हैज टू बी ऑन द ग्राउंड। सो दैट्स व्हाई environmental conditions were also another reason why grass pitches were slowly being looked away from. And when AstroTurf came and said, why don't we put a pitch for you in Montreal, the FIH said, why not? Important to note, AstroTurf is not the name of the surface. जैसे कि समझो फोटोकॉपी हम जब करने जाते हैं, हम जेरोक्स करा दे बोल देते हैं, या इफ वी लुक एट अ सिंथेसाइजर हम उसको कैसियो बुला देते हैं, या टूथपेस्ट खरीदते समय हम कोलगेट बुला देते हैं। वैसे ही उस सरफेस को, क्योंकि द कंपनी दैट स्टार्टेड मेकिंग द सर्फेसेस वाज कॉल्ड एस्ट्रोटर्फ, हम उसको एस्ट्रोटर्फ बुलाने लग गए। अब इन्होंने एस्ट्रोटर्फ ने लेआउट तो कर दिया 1970 मॉन्ट्रियल के ओलंपिक्स के दौरान, और मैचेस शुरू हो गए। पर ये याद रखिएगा, जब तक मैं एस्ट्रोटर्फ के बारे में बात कर रहा हूं, मैंने अभी तक पानी शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि दिस वाज मेंट टू बी अ ड्राई पिच। इट वाज मेंट टू मिमिक द कंडीशंस ऑफर्ड इन अ नॉर्मल हॉकी डे व्हेन इट्स प्लेड ऑन अ ग्रास पिच। पर मॉन्ट्रियल में ना बहुत बारिश होने लग गई, और इतनी बारिश होने लग गई कि मैचेस खेलने पड़े वेट पिच पर, एंड दैट्स व्हेन द FIH हैड इट्स यूरेका मोमेंट, बिकॉज़ द प्लेयर्स and the staff and everybody else just looked at this pitch and they were in awe. जब गीला था एस्ट्रोटर्फ, तो ज्यादा तेज बॉल ट्रैवल कर रही थी, स्किल अच्छी तरह निकल रहे थे, इट वाज सेफर फॉर प्लेयर्स एज वेल टू प्ले। कभी आपने ड्राई एस्ट्रोटर्फ पर खेलने की कोशिश की है? मैंने की है। ट्यूसडेज को हम फुटबॉल खेलने जाते थे और एक 9-a-side पिच हम बुक करते थे, जो एक हॉकी पिच था, लेकिन उस पर पानी नहीं डाला जाता था। यदि गिर गए और यदि स्लाइड कर लिया ना, मेरे घुटनों पर अभी भी फ्रिक्शन बर्न्स हैं और वो पैचेस हैं। इतना जलता है, इतने गंदे फ्रिक्शन बर्न्स होते हैं। तो जब पानी डाल देते हैं तो फ्रिक्शन बर्न्स भी नहीं होते, स्लाइड करना भी आसान है, प्लेयर सेफ्टी के लिए भी अच्छा है, बॉल ज्यादा फास्ट मूव कर रही है, स्लिक मूवमेंट हो रही है, बेटर कंट्रोल आ रहा है। भले ही कोशिश नहीं थी ये करने की, लेकिन ये यूरेका मोमेंट मिल गया, प्लेट पर ही परोस कर मिल गया FIH को कि वेट एस्ट्रोटर्फ्स इज द वे टू गो। एंड इस वजह से हम वेट टर्फ पर हॉकी आजकल देखते हैं। तो इस वजह से नहीं हुआ था ये कि इंडिया का डोमिनेंस खत्म करना था, इस वजह से वेट एस्ट्रोटर्फ पिच पर खेलने लग गए क्योंकि बारिश पड़ गई थी मॉन्ट्रियल में। ये है सच। एनीवे, तब से लेकर अब तक पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, भर भर के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन एज environmental consciousness has started growing, then the worries around hockey have also started growing. The consumption of water has started raising questions, and which is why in 2018 the FIH came out with an announcement saying that it's going to work towards making hockey more environmentally friendly. उसको मद्देनजर रखते हुए टोक्यो 2020 में पॉलीग्रास, जो नई कंपनी है जो इन्होंने डील साइन की थी FIH के साथ for their turfs, they came out with a surface called Tokyo GT. GT का मतलब है ग्रीन टेक्नोलॉजी। अब क्या था इनिशियली, व्हाट
AstroTurf was, or what you would also think turf is that it's made out of nylon fibers. Nylon fibers, fancy word for plastic. तो प्लास्टिक की वजह से भी इन्वायरमेंटल कंसर्न बढ़ रहा है, पानी भी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा है. तो इसको काउंटर करने के लिए टोक्यो जीटी बनाया गया था. What was interesting about Tokyo GT was that not only did it consume less water, it was also made out of 60% natural fibers. अब ये natural fibers कहां से उभर के आए? गन्ने के खेत से. जी हाँ, sugarcane was turned into these molecules that mimic plastic, mimic the conditions, mimic the material that's required to make a turf. And 60% of that was mixed into the plastic that was created, and then the turf was laid. अब इससे क्या पता चला कि ये हो सकता है. Cut to 2023. 2023 में वर्ल्ड कप हुआ था भुवनेश्वर और राउरकेला में. पॉलीग्रास ने एक और सर्फेस यहाँ रिलीज की, which was even better, which managed to consume 60% less water than what was previously consumed. क्या मतलब है इसका? मैंने कैलकुलेट किया था. Now roughly in an Olympics, you would end up playing 72 matches nowadays when it comes to hockey. 38 men's matches, group matches plus finals. 38 women's matches, group matches plus finals. 72 मैचेस में अगर आप 6000 लीटर इस्तेमाल करें, इसका मतलब है आप लगभग 4.5 लाख लीटर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं. उसका आपने अगर 60% लेस इस्तेमाल कर लिया, 60% अगर आपने लेस इस्तेमाल कर लिया तो सोचिए कितना फायदा होगा. कैलकुलेट कर लेते हैं एआई के तहत कितना है. It's still a lot, but at least it reduces the water consumption during a tournament by about 2 lakh liters and a bit more, and that is a stepping stone in the right direction. The next step was what I was speaking to you about, which is the Paris 2024 GT. जो Paris 2024 GT था वो और भी खास साबित हो गया. पहली बात तो कितना सुंदर रंग था उसका. दूसरी बात, it used 80% sugarcane. अब 80% sugarcane molecules अगर आप इस्तेमाल करेंगे, उसकी वजह से became the first carbon neutral surface. अब कार्बन न्यूट्रल का क्या मतलब होता है दोस्तों? यानी कि जितना आप एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जितना आप पोल्यूटेंट्स डालते हैं, उतना ही आप सुधार ला सकते हैं. Now there are two ways of doing it. One way of doing it is obviously the way that they are trying to do by reducing the carbon emissions itself to a point where it's completely carbon neutral. The second way to do it is what big companies do. वो obviously हॉकी थोड़ी ना करेगा. हॉकी is not Apple ना, कि मैं अगर एक फोन बनाऊं तो मैं 10 पेड़ उगाऊंगा. That is another way of achieving carbon neutrality. यहाँ क्या किया उन्होंने? कार्बन इमिशंस ही रिड्यूस कर लिए इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द पिच, तो इसलिए कार्बन न्यूट्रल बन गया. FIH wants to go a step further in their bid to be environmentally conscious. उन्होंने कहा था that by LA 2030 and at LA 2030 itself, hockey will be played on a completely dry surface, जहां पर पानी की जरूरत ही ना पड़े. पर ऐसा हो नहीं पाया है. उन्होंने कोशिश बहुत की हैं, पॉलीग्रास के साथ काम कर रहे हैं टू अचीव दैट गोल, बट व्हाटएवर एक्सपेरिमेंट्स दैट दे हैव डन सो फार हैव फेल्ड मिजरेबली. क्योंकि उस पानी की वजह से ही तो वो स्लिकनेस आती है, वो फास्ट ट्रेल आता है बॉल का, और इस वजह से ही हॉकी इतना फास्ट पेस गेम बन गया है. पर जैसे ही वो ड्राई पिच हुआ, वो फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ रहा है और इस वजह से वो खेल में प्रभाव आ रहा है. They're trying, but there's still a long way to go. But until then, at least we can take solace in the fact कि hockey is not leading to a drought somewhere in the world.